Hare Krishna. So we are very fortunate that we have with us is Hari Parshad Prabhu and Sriji Mataji. It's Hari So Prasad. Hari Prasad. Hari Prasad Prabhu. So I'll briefly introduce Prabhuji. Prabhuji got initiation in 2002 and Mataji got initiation in 2010. And like it's been 2 decades. Prabhuji is like involved in many services. Prabhuji involved in preaching services and in DT worship services. And Prabhuji is very established materially and spiritually, like both of them. So Prabhuji was into telecom industry, like he has worked there for 17 years, and now Prabhuji owns a business. Mataji has done a BE, ME, and PhD in computer engineering, and Mataji is currently serving as HOD in artificial intelligence in DY Patel College of Engineering. And in terms of services, like they have rendered many services. Mataji is actually like she is doing many DT worship services in Nigri temple, and Prabhuji comes like almost 3 or 4 times in a week to NVCC from Nigri, and like he's doing like many services related to like DT dressing and like Sandhya Aarti, like so many services. Prabhuji travels all the way from Nigri to NVCC like 4 times in a week, so like it's a very big thing. And Prabhuji also is involved in like training grastas, like those who are Brahman initiated grastas, so different training and seminars Prabhuji gives, and like he trains the devotees, Brahman initiated devotees to take up services and like DT services in the temple. And Prabhuji is also in charge for like, DT services like from grasta side, like the DT services which they render. So Prabhuji is in charge of allocating those services to the devotees. So we are very fortunate that have Prabhuji's and Mataji's association. So we'll welcome Prabhuji and Mataji by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol. Krishna. Haribo, we are really servant of yours. Don't worry. Before starting the session, we are here to help you, and I like to learn from all of you. जो माताजी are coming from other places, we are learn to learn from you. तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे थोड़ा सा. Is comfortable for हिंदी? Everybody, सबके लिए हिंदी ठीक है? हरी बोल. अच्छा, ये सेशन लेने के पहले मैं जानना चाहता हूँ ये सेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप क्या जानना चाहते हैं इस ट्रेनिंग सेशन से, ये डीटी वर्शिप सेमिनार से, छोटा हमारा जो है? कुछ बोलना चाहेंगे कोई? प्लीज. हाँ जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, घर को हम मंदिर बना सके. हाँ, घर को हम अपना मंदिर बना सके और वैष्णव की सेवा कर सके. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और किसी को कुछ पॉइंट है? जब प्रभु जी और माता जी दोनों जब जॉब जा रहे हैं तो हम कैसे डीटी का देखभाल कर सके और क्या क्या चीजें मतलब उसमें क्या रहता है ना स्टैंडर्ड कौन कौन से फॉलो करना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस. यानी आपको पहले प्रोसेस समझना है, उसके बाद स्टैंडर्ड समझना है, बराबर है? वेरी गुड. और किसी का कुछ पॉइंट है? यानी पहले इसके पहले डीटी लाना है कि नहीं लाना वो भी सब्जेक्ट है. ठीक है. Yes, प्रभु जी. Same thing ki till now we did DT worship in voices, Right. that to frame only. So how it will be different in Grasta life and when get the DTs. Right. So that we want to. तो हम लोग वो पॉइंट पे कवर करेंगे कि आपका सवाल है कि हम लोग वॉइस में अभी तक डीटी वर्शिप करते थे, अभी हमारी शादी होगी आगे चल के, और फिर हमारे पत्नी के साथ हम दोनों मिलके कैसे डीटी वर्शिप करेंगे और टेंपल की सेवा भी कैसे करेंगे. मैं राइट प्रभु जी? बराबर है सवाल? हरे कृष्णा. तो जिन घर में मतलब ऑलरेडी डीटीज होंगे फ्रॉम आवर फैमिली बैकग्राउंड, so in that case like and like bona fide deities in proper sampradaya, right. In that case, how do we tell or basically bring in say Gaur Nitai, for instance, to our home? How do we manage that? वो मैंने क्या आपको बताता हूँ. So आपका सवाल ऐसा है कि हम लोग हमारे दादा परदादा से सेवा करते आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये मत करो और सिर्फ गौरनीता का सेवा करो, वो कैसे करना है? Am I right? Means Vishnu deities only. अच्छा ठीक है, दोनों साथ में कैसे सेवा करें? हाँ. राइट, चलो ठीक है. यस. और किसी का? घर के और मंदिर के विग्रहों में क्या आराधना और अर्चना करने के टाइम पे क्या अंतर होता है दोनों?
तो मंदिर का वर्शिप स्टैंडर्ड क्या रखना चाहिए और घर का स्टैंडर्ड क्या रखना चाहिए और वो कैसे करना है, इसके बारे में आपको जानना है। थैंक यू। Hare Krishna Guruji. Here, last row. नहीं बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो। लाइक बहुत बार ऐसा देखा, मतलब समझ में आता है कि जैसे गौर निताय के डिटीज है, राधा कृष्ण की डिटीज है, जगन्नाथ की डिटीज है, तो स्टैंडर्ड में सबसे पहले इनकी विग्रह की पूजा से स्टार्ट करना चाहिए। एंड उसके लिए मैंने कोट डाला है, प्रभुपाद ने लिखा हुआ, वो मैं आपको पढ़ा। जी प्रभु जी। ठीक है, विल गो थ्रू ऑल द पर्पस, डोंट वरी। और किसी का वहां था पीछे? Yes Guruji. Hare Krishna. यस ब्रो। Actually Guruji, अभी एज अ गृहस्थ हमारे पास बाल गोपाल है। Right. तो when is the when means what is the exact good time so that we can have the DTs and means हमने वो उसके लिए DTs लेना चाहिए या फिर बाल गोपाल की करना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल की हम लोग हमारे कंफर्ट के हिसाब से DT वर्शिप करते हैं। एंड अगर हम DTs लेते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होता है, तो राइट। हम वो कब करना चाहिए and कब वो DTs लेनी चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए? और ठीक चलेगा, वो भी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। और किसी को कुछ कहना है? और यस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है मेरा प्रेजेंटेशन में 15 मिनट में खत्म करके आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करो। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna Prabhuji. यस Hare Krishna Prabhuji. यस ब्रो। Prabhuji, in yoga I'm staying, so when they tell me to do DT worship, I was like, no Prabhuji, my mind is polluted, I cannot do. So if and also when I ask our counselor why we are worshipping like not the deities in the वॉइस in the vigraha form, ओके। why we are not worshipping, then a counselor said that that vigraha archana should have some rules and regulations Right. which we might not follow perfectly. So एब्सोल्युटली। if we cannot follow in the devotees association, how we can follow in the grahastha? वो भी शादी करने के बाद कैसे होगा? राइट, गुड क्वेश्चन। एनीथिंग मोर? हरे कृष्ण प्रभु। यस जैसे कि राधेश्याम प्रभु ने भी कहा था कि लीडर शुड बी विजिबल, राइट और एट द सेम टाइम मॉर्निंग को हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है। राइट जितना ज्यादा हम कर सके, रेगुलरली कर पाए तो भी अच्छा है। तो अलॉन्ग विद इट, अगर हमारे घर पे DTs है तो हम कैसे साइमल्टेनियसली दोनों भी चीजें अच्छे से दोनों चीजें कैसे साइमल्टेनियस, यानी Yes. आपने को साधना भी करना है और DT वर्शिप भी करना है, तो दोनों कैसे करेंगे? राइट, ये आपका क्वेश्चन है। Yes. थैंक यू, आई विल अपडेट दिस। लास्ट टू। हाँ हरि बोल प्रभु Yes. जी। हियर यस प्रभु जी, मतलब अभी महाराज का मूड है कि अपना प्रीचिंग मूवमेंट है, तो सुबह सुबह आना, इधर मंगल आरती करना, फिर घर पे जाके घर के DTs का भी घर पे करना, जाके कुकिंग तो करना, ये सब बैलेंस कैसे करेंगे? राइट, ये बहुत डिफिकल्ट है ब्रो। ठीक है। हरे और कृष्ण प्रभु। यस तो जैसे अभी जो वैष्णव बैकग्राउंड से है या जिनके घर में विष्णु ही थे आराध्य, उनके लिए इजी है। और जो शैवियट बैकग्राउंड से है कि जिनके घर में भगवान शिव की पूजा वगैरह होती है, तो घर में पहले स्थापना कैसे करें, घर वालों को कन्विंस कैसे करें इस बारे में कि हमको गौर निताय के DT मुझे लगा है मुझे इंस्टेड ऑफ 1.5 आवर्स मुझे 4 घंटे का सेशन देना चाहिए। ठीक है, विल ट्राई टू कवर आवर दिस PPT एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इंडिविजुअली हम लोग क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे, इट विल बेटर, क्योंकि सबके ज्यादा क्वेश्चंस है तो हम लोग उसको आंसर करेंगे। मैं खुद के बारे में बताऊंगा। मैं हरिप्रसाद दास हूँ। मैं DT वर्शिप करता हूँ। लास्ट 2013 से मैं राधा रंजन चंद्र भगवान का सेवा कर रहा हूँ। मैं मेरे थोड़े रियलाइजेशन बताऊंगा कि सेवा हम लोगों ने कैसे स्टार्ट चालू की और इसमें कैसे आए। तो आई विल ट्राई टू सर्व यू एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना आपको मैं कर सकता हूँ। अब मेरे को क्वेश्चन आंसर का टाइम हम लोग ज्यादा रखें क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, तो आई विल ट्राई टू बेस्ट। और किसी को और कोई क्वेश्चन होता तो मुझे बाद में मिल सकता है। मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे राधा रंजन चंद्र टेम्पल में रहता हूँ। ठीक है, विल स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन विद इन 15 मिनट 20 मिनट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर ज्यादा लेंगे। इज इट ओके? थैंक यू। One thing, the presentation credit goes to His Grace Omkar Gopal Prabhu. So let us thank him also. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि बोल। पर्पस ऑफ दिस, हरे कृष्णा। एक्चुअली जब मेरे को सब्जेक्ट दिया गया था तो मैंने आत्माराम गौराम प्रभु को बोला कि प्रभु जी
वाई यू आर सिलेक्टिंग मी, यहाँ इतने बड़े हमारे टेम्पल में इतने बड़े महान भक्त है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो वो लोग जो आप सेवा कर रहे हो आप लोगों को बताइए, उसमें से इंस्पायर करिए। और हम लोगों का इंटेंशन ये है कि आप जैसे घर में वर्शिप कैसे करेंगे, जैसे बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन है, उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो पर्पज ऑफ दिस थोड़ा सेशंस का है कि हम लोग डीटी वर्शिप जैसा स्टैंडर्ड है एनवीसीसी में कैसे हो रहा है और अपने घर में कैसे करने चाहिए, छोटा सा फेयर डील आपका होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। डेटा वर्शिप में बहुत सारे माता भी अभी यहाँ बैठी है, तो उनको भी कैसे एंगेज करना चाहिए प्रॉपरली। एंड हाउस ऑर्डर के लिए प्रभुपाद ने क्या स्पेसिफिकली कहा, व्हाई हाउस ऑर्डर के लिए डीटी वर्शिप इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग कवर अप करेंगे। डीटी वर्शिप के फायदे और हमारा एनवीसीसी में डीटी डिपार्टमेंट में सर्विसेज क्या अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको रूटीन मालूम है, इंस्टॉल एनवीसीसी में 4:30 से स्टार्ट होता है। यहाँ बहुत सारे ड्यूटी पे बैठे जो बैकअप करता है, 4:30 का बैकअप है 4:30 का बैकअप है। उसका बैकअप मंगल आरती, श्रृंगार, बाल भोग, मंगल भोग, उत्तम भोग, संध्या भोग, ये हम लोग जैसे ऑल टेम्पल में होता है इसका के उस हिसाब से हमारा वृंदावन चंद्र में होता है। वी आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल, सेम कैलेंडर, सेम टाइम टेबल एज मायापुर का होता है या वृंदावन का होता है। What is the temple according to the perspective of the Gaudiya Vaishnava Parampara? Temple is a place to worship, reflection of our consciousness, embassy of spiritual world, expansion of Vrindavan and Mayapur Dham, and give by Srila Prabhupada and Acharyas and focus of worship of Lord unitedly. अब मैं कहूंगा प्रभुपाद का यहाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने हमें डीटी वर्शिप दिया है। आप आखिर कोई संप्रदाय में चेक करेंगे तो इलाबरेट, उसी संप्रदाय में इलाबरेट डीटी वर्शिप होता है, बट अकॉर्डिंग टू पंचरात्रि का विधि जो प्रभुपाद ने दिया है इट इज द बेस्ट। आप कहेंगे प्रभु जी आप कर रहे हैं इसलिए आप खुद को बेस्ट कह रहे हैं, ऐसा होता है ना। बट प्रभुपाद ने आज डीटी वर्शिप दिया है, इतना स्टैंडर्ड दिया है, आप देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवोटीज, उनकी चेतना में बहुत सारा फर्क होता है कि डीटी वर्शिप करके। और जब मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो वो प्रचार भी स्ट्रांग होगा, और प्रचार भी स्ट्रांग होगा तो प्रगति ज्यादा होगी। अब मैं एग्जांपल दूंगा, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज ने, राधानाथ स्वामी महाराज ने भी 11 साल राधा वृंदावन चंद्र टेम्पल में न्यू वृंदावन में सेवा की थी। मैं एक स्लाइड में डाला है मैंने कि लोकनाथ स्वामी महाराज भी डीटी वर्शिप अच्छा से करते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज के उनके खुद के आर्चे विग्रह है, जो जहां भी जाते तो आर्चे विग्रहों के साथ लेके जाते हैं। तो हम लोग परंपरा में है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अलग दिशा में जा रहे हैं और इस्कॉन का फिलोसफी कुछ अलग जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि ये दोनों विधि दिया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद के वजह से हमें इसका ज्ञान मिल रहा है और हम लोग उसकी प्रॉपरली सेवा कर पा रहे हैं। व्हाट आर द इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मीन्स केयरिंग ऑफ द लॉर्ड एज अ पर्सन, लॉर्ड इज अ ट्रांसेंडेंटल टू आवर मंडेन सेंसेस, ही कैन नॉट बी सीन विथ आवर प्रेजेंट आइज, nor can be heard or with our present ears. To the degree that we have entered into the service of the Lord, to the proportion to which our lives are free from sins, we can pursue the Lord, but even thought we are not free from the sins. The Lord is kind of enough to allow the facility to sing Him in His archamurtis in the temple. The Lord is all powerful, and therefore He is able to accept our services by presentation of His archa form. No one therefore should foolishly think that archi in the temple be the idol. Such an archamurti is not idol but the Lord Himself, and to the proportion to which one is free from the sin, he is able to know the significance of archamurti. The guidance of pure devotee is therefore always required. This is a very unique point. I want to say first point that Lord is, the murtis are not idol, they are the established. इसमें एक इंसिडेंस बता, आपको पता होगा, जुहू का टेम्पल का एग्जांपल आपको देता हूं, जहां प्रभुपाद ने राधा रासबिहारी को कहा था आई विल बिल्ड टेम्पल फॉर यू लॉर्ड, स्टे हियर। वहां आइडल नहीं, मान लीजिए आइडल होते तो प्रभुपाद बोलते थे क्या? थोड़ा सोचने की पॉइंट लिख ली। नो, इज द मूर्ति, इज साक्षात प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद सेड टू लॉर्ड
Lord, be here. I am making big temple for you. Try to understand this point very clearly. Okay. Any question in between, you can ask, no problem. Himavati Mataji from Japan, this letter had sent to Prabhupada on 18th March 1969. If one of attains perfection of deity version, that is called Archa Siddhi. Archa Siddhi means simply by deity worship one goes to back to Godhead immediately after this life. So the Archa Siddhi program is given to the Narad Pancharataka, especially for the householder. And householder cannot undergo strict disciplined activities of austerity. Therefore, for every householder, the path of Archa Siddhi is very recommended. According to the Vedic system, all householders are ordered to keep deity at home and follow the strict worship process. That makes the home pure, body pure, and mind pure, and quickly promotes one to the pure platform of spiritual life. The temple is also specifically meant for the householders. आगे और एक कोट है जिसमें प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा है कि deity worship in house in temple also done by only householders. If one is a fully consciousness, he can make his home very happy because the process of Krishna consciousness is very easy. One need only chant Mahamantra, accept the remnants of foods of offer to Krishna, have some discussion on books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, the engage oneself into the deity worship. These four will make you one happy. The deity worship is very important part of the Krishna concept. Do it seriously. So try to understand what is the importance of the deity worship. Srila Prabhupada saying this is for our householder. एक मिनट अब इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा आप कहेंगे प्रभु जी आप स्ट्रेसिंग ऑन डिटी वर्शिप जैसा अभी प्रभुपाद ने कहा है सॉरी हाँ स्पेसिफिकली कहा था कि अर्च सिद्धि में सिंपली बाय डिटी वर्शिप वन गोज टू बैक टू गॉड हेड सो माइट बी यू आर सेइंग दैट प्रभु जी बाकी लेक्चर्स में राधेश्याम प्रभु ने कहा कि यू ट्राई टू डू योर साधना प्रॉपर्ली देन यू कैन एबल टू गो टू बैक टू गॉड हेड सो आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी I am also, please do not misunderstood. This is letter by Srila Prabhupada. So, yes, bro, you have any question? Okay. So, should you go ahead? It is going very high speed. Is it okay? Okay. Acha, definition of date, yeah. Krishna Prabhuji. So, In there are this some slide? devotees Yeah, I'm not. about this topic. Yeah. So, there are some devotees who emphasize going to temple more than having deities at home because they said Prabhupada encouraged Morning program. temple to be the center, Yeah. and devotees should go. Instead of preferring to keep deities at home. Yeah. For specifically this question, I talked with our senior counselor Jaydev Prabhu for this. He is going to come tomorrow. I asked him whether we are saying to our devotees to keep deities at their home. यानी मैंने जयदेव प्रभु से बात किया स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के लिए कि हम लोग ऐसा कोई प्रमोट कर रहे हैं कि हमने हर एक ने घर में डीटी रखना चाहिए क्या? तो उन्होंने उसका आंसर दिया नहीं. हर एक का मूड के हिसाब से वो सेवा कर सकता है. किसी का मूड डीटी वर्शिप में है, किसी का मूड प्रीचिंग में है, किसी का मूड सर्विंग में है, किसी का मूड फैसिलिटेस बनना है. तो हर एक का मूड के हिसाब से वो सेवा करेगा. और ISKCON ने ऐसा फैसिलिटी दिया कि बहुत सारे सर्विसेज आर अवेलेबल नेशनली इंटरनेशनली. ऐसा नहीं किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है. हमारे एनवीसीसी में 24 आवर कीर्तन होता है एकादशी को दिन. तो किसी को कीर्तन आप समझ लीजिए रात के 12 बजे वो डिवोटी फैमिली आ रही है और 12 बजे रात को कीर्तन कर रही है. 12 बजे से लेके 12:30 बजे का आधा घंटे उनका स्लॉट है. वो 12:30 बजे वापस घर जा रहे हैं. तो अब और दूसरा फैमिली आ रहा है 12:30 टू 1 बजे तक कीर्तन करने के लिए. आप पूछेंगे प्रभु जी ये क्यों आ रहे होंगे? तो उनका एक टेस्ट है. उनका एक टेस्ट है, उसको हम लोग किसी को इग्नोर नहीं कर सकते. हम एनवीसीसी किचन में एक प्रभु जी है, वो लास्ट 25 साल से बैकअप सेवा कर रहे हैं. यानी बर्तन बड़े बर्तन से होता है उसे छोटे छोटे बकेट्स में डालना, ये सेवा कर रहे हैं विजय चैतन्य प्रभु करके. तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसा कर रहे हो? तो हर एक का मूड के हिसाब से है. और हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि जितना भी टेंपल के आसपास है उनके सब आप मंगल आरती में देखेंगे यहाँ सर सब लोग आ जाते हैं मंगल आरती में.
लिमिटेड फैमिली ऐसा नहीं होता है। तो आपको उसके हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि हमें भगवान को आफ्टर कमिंग बैक हम लोग हमारी मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म करने के बाद 7:30 आने के बाद भगवान को उठाएंगे और प्रसाद ऑफर करेंगे, कैसे करेंगे। बट आपको मुझे ऐसा कहना है कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और एक आपको डिसाइड करना है आपका रेगुलेशंस, आपको रेगुलराइज होना है खुद को कि हमें कैसे करना है। मैं हाउस होल्डर को स्पेसिफिकली कहता हूं कि हमें अपना, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप डिसाइड करिए आपके खुद को और आपके जो काउंटर पार्ट आपकी पत्नी को साथ लेके कि हमें डीटी वर्शिप कैसे करना है, स्टैंडर्ड क्या रखना है। बस दिन में 1 बार भोग लगाना है, 2 बार भोग लगाना है। तो आपको ये स्टैंडर्ड आपका खुद, मैंने ऐसे भी फैमिलीज है जो दिन में जाना माता जी के घर के फैमिली, वो डीटी वर्शिप टेम्पल के हिसाब से वो डीटी वर्शिप करते हैं। सो दे स्टार्ट एट 4:30, लॉर्ड टेकिंग रेस्ट एट 8:45। जैसा टेम्पल का प्रोग्राम होता है वैसा ही प्रोग्राम उनके घर पे होता है। तो बट आप अभी जॉब कर रहे हैं, आपको मान लीजिए आप आईटी में है, बॉस का कॉल कभी भी आता है, आपका कॉल सेशन चलता है, यूएस का कॉल है, यहाँ का कॉल है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वो पॉसिबल नहीं है आपको करने के लिए। प्रैक्टिकलिटी भी देखना चाहिए ना प्रभु। मेरा ऐसा कहना है कि आप डीटी वर्शिप करते हो घर में तो एज पर योर स्टैंडर्ड और आपके काउंसलर का मत या अंडरस्टैंडिंग लेके आपको करना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि अगर बिजी है, लेकिन अदर केसेस जहाँ पे माताजीज भी वर्किंग है, फॉर माय केस आल्सो, तो वी हैव टू डिसाइड एंड बेसिकली देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे काम करके करना नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मेरा बच्चा है, मेरे बेटे का नाम हनुमान है, तो मुझे इसे खिलाना ही है, उसे देना ही है, मैं उसको भूखा नहीं रखूंगी, बट वो प्यार से करूंगी। एज अ बर्डन नहीं होना चाहिए। वैसे डीटी वर्शिप भी आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए कि करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए जो आसपास रहते वो मंदिर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट अपनी खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए या बच्चों के प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को भी अट्रैक्शन रहेगा अगर हम डीटीज लाएंगे घर में। तो लाना है कि नहीं लाना है, ये आपका, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, अगर लाना एग्री है तो क्या स्टैंडर्ड रखेंगे, एज फार एज पॉसिबल मंदिर का रखेंगे। पर जहाँ पे कम कर रहे हो आप, बट इतना भी डिग्रेड नहीं, क्योंकि डीटीज है वो साक्षात भगवान है, तो हमने उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट से, उतना ही प्रेम से, क्योंकि भगवान सही में ये नहीं देख रहे कि आप क्या खिला रहे हो, बट कितने प्यार से खिला रहे हो, कितने पंक्चुअलिटी एंड क्लीननेस, वी ऑल नो दैट इज द थंब रूल ऑफ डीटी वर्शिप, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस। तो एज फार एज जितना हमसे पॉसिबल होता है वो करें। बट कुछ केसेस में अगर बच्चे छोटे हैं तो सही में कब लाना है, कौन से लाना है, वो आपने म्यूचुअली डिस्कस करके करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो कि लाया है फिर बाद में जाके बर्डन हुआ, नहीं। तो आप चाहे तो डिले कीजिए, क्योंकि अगर हमने फोटोज भी रखे हैं पहले केस में, जैसे हम इन द बिगिनिंग स्टेज वी कीप इन द आल्टर फोटोज, साक्षात नाही प्रतिमा नाही साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, जहाँ पे सीसी में यह कोट आता है। तो टोटली अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि हम सही में फोटोज को भी भगवान मान रहे हैं या फिर डीटीज लाके उनका नहीं करके भी उनको भगवान नहीं किया। अभी स्पेसिफिकली मैं बर्डन के बारे में बता रहा हूँ। जैसी माँ होती है, वो बच्चा छोटा होता है, नटखट होता है, बट उसको संभालती है, अच्छे तरह से पालती है। ऐसे मैं थोड़ा सा गांव से आया हूँ, गांव में रहता था ना भाई, मैं जाऊंगा नहीं, गांव से दूसरे गांव नहीं जाते, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरी गाय दूध नहीं देती। सो दैट फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। और एक वर्ड मुझे स्पेसिफिकली महाराज का लेक्चर में था कि द डीटी वर्शिप नॉट इज योर ड्यूटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी यानी हम लोग जॉब कर रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज फ्रॉम माई हार्ट, आई एम डूइंग दैट सर्विसेज फ्रॉम माई हार्ट। इफ आई नॉट डूइंग फ्रॉम, मैं मेरे मन से नहीं, हृदय से नहीं करूंगा सेवा, तो कोई फायदा नहीं है, वो किसी को शो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान जैसा इसमें कहा, डेटी इज अमर घोष में, इट इज विग्रह, इट इज आर्च, इज अ प्रतिनिधि, इज अ प्रतिमा, प्रकृति, प्रतिहता, प्रतिभाम, प्रतीक्षा। इज नॉट डिफरेंट, इज लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर लॉर्ड हिमसेल्फ। Why Lord deity verse is required for the householder, and we are spirit souls trapped in the uh, trapped in human body. अभी इसमें हम लोग थोड़ा जॉब में देखेंगे, वी आर ट्रैप्ड इन आवर जॉब। सुबह का शिफ्ट है, इवनिंग जॉब है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। वीरू भाई, द लॉर्ड प्रोवाइड अस ऑल द नेसेसरी आइटम्स फॉर आवर
survival. DT worship help us come out from the bodily platform, family engagement in Vigraha Seva. As fact of gratitude and understanding the propriety of the Lord, our dependence on Him, we offer Him thanks and prayers, which is essence of every ritual. By deity worship, we can easily offer our gratitude and love towards Krishna. Bhoga offering में specifically मैं कहूँगा कि माता जी are here. तो भोगा offering में they are making so much nice भोगा. They never think अभी वो इतने से मेरे को बचेगा कि नहीं बचेगा. होता है ना? But Lord is taking care of everybody. They are making proper engagement. So bhoga preparation, bhoga paraphernalia, day-to-day services. Eventually, by the Vahai media, the holy names and deity worship, only our faith or transfer into the love for the Supreme Lord. Deity worship is training for oneself, and to take Krishna consciousness to next level. And by following the proper deity worship standard, our heart becomes purified and we receive the unlimited blessings from the. तो जैसे यहाँ पे था कि डिटी वर्शिप क्यों करें? क्योंकि सही में हम साधक स्टेज में है तो हम हर जगह पे भगवान देखने के इसमें नहीं है। तो एटलीस्ट इस स्टेज में आए कि अर्चा विग्रह में तो भगवान देखें और तब जाके हम सर्विसेज रेंडर करें। और अगर सही में हमारी कॉन्शियसनेस है और कोई है वृंदावन में इतने ऐसे बहुत सारे साधुज हैं जो सब में भगवान देख सकते हैं, इसीलिए तो वो धाम में है। बट हमारी वो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हमको ग्रेजुअली वो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से जाना है। इसीलिए हमको रेगुलेटेड डीटी वर्शिप चाहिए, क्योंकि हमने अगर वो वाउज लिए कि डीटीज लाए हैं तो उनकी वर्शिप करेंगे, उस टाइम पे उठाएंगे, उस टाइम पे उनको भोगा लगाएंगे, तो हमें वो आदत लग रही है, हम वो फॉलो करें तो इवेंचुअली बच्चे भी वो कर रहे हैं। मतलब हम जाके उनको बताएंगे फिर वो करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। हमने हमारे एग्जाम्पल से ही दिखाना है और बच्चे वो लर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको डीटी वर्शिप जरूरी है। इसमें मैं और एक पॉइंट कहूंगा कि अपना जो अभी तक का स्टूडेंट लाइफ आपका रहा वो अनडिसिप्लिन स्ट्रक्चर रहा, बराबर है। अनडिसिप्लिन यानी कैसे? कभी भी उठना है, कभी भी सोना है। तो डीटी वर्शिप से आपका लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाता है। जैसा मैंने प्रोजी के क्वेश्चंस में बताया कि आपका स्टैंडर्ड फिक्स किया आपने, भाई दिन में मुझे 2 बार भोग लगाना है, तो आप मेंटली उसको म्यूट अपने माइंड को म्यूट कर दिया कि भाई मुझे दिन में 2 बार भगाना है। और भोग का प्रिपरेशन मुझे 1.5 आवर लगता है। 2 घंटा मेरा जपा के लिए, 1 घंटा मेरे को श्रवणम करना है। उसके बाद तो यू स्टार्ट योर, मुझे ऑफिस 10 बजे जाना है, तो आप बैकअप कैलकुलेशन करके उसको प्रॉपर करते हो, तो दैट इज बिकम, उससे आप डिसिप्लिन हो जाते हो, बराबर है वो। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स है, चाहे तो अब आई मीन यू कैन गो थ्रू द पीपीटीज आल्सो लेटर, बट द इसेंस वही है कि डीटी वर्शिप क्यों करे, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए। सबका इसेंस यहाँ पे भागवतम से कोड्स है, हमारे ओंकार गोपाल प्रभु ने बहुत मेहनत करके पीपीटीज बहुत अच्छे से बनाया है। तो हर एक का इसेंस यही है कि प्यूरिफिकेशन के लिए डीटी वर्शिप जरूरी है। अच्छा, ये जो कैंटो 7th कैंटो चैप्टर 14 वर्स 29, ये जो होता है जो इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल लाइफ, जहां प्रहलाद महाराज को सॉरी इट इज प्रहलाद महाराज, तो इसमें स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने कहा है कि द डिटी कैन नॉट बी वर्शिप एक्सेप्ट बाय द डिवोटीज। द टेंपल वर्शिपर हु फेल टू गिव इंपॉर्टेंस टू डिवोटीज आर थर्ड क्लास। In the temple, there must be a deity of the Lord, and the Lord should be worshipped by the devotees. This combination of the devotees and the deity creates a first-class transcendental place. Aside from this, if your Grihastha devotee worship the form of deity at home, his home also becomes very great place. It was therefore customary for members for the 3 higher classes, namely Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, to worship the small deity of Radha Krishna, Sita Ram in each and every home. That makes everything auspicious. So सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने कहा कि सीताराम एंड राधा कृष्ण का स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। अभी इसमें किसी का सवाल था कि गौर नीता हम लोग रख सकते हैं क्या? जस्ट आई विल कवर दैट आल्सो। स्पेसिफिकली फर्स्ट हम लोग सबको कहते हैं कि आप पहले आरची विक्रम में गौर नीता लीजिए या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लीजिए, और उसमें आपका अच्छा सेवा करने के बाद आप राधा कृष्ण या सीताराम हम लोगों ने बहुत कम लोगों के पास है,
बट राधा कृष्ण बहुत लोगों के पास हम लोग रखते हैं, बट इनिशियली सबको हम लोग गौर निताय का ही वर्शिप स्टैंडर्ड कहते हैं। अभी इसमें आप कहेंगे कि गौर निताय क्यों कहते हो, क्योंकि गौर निताय का इज सो मर्सीफुल, इज कमिंग फॉर कलियुगा, तो उसके लिए गौर निताय का ऑफरिंग। बट मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को, कि आप कैसा सेवा कर सकते हैं। इसमें से कितने लोग कुकिंग कर सकते हैं, मैं जान सकता हूँ? एवरीबॉडी? जय, थैंक यू, जय। मैंने सवाल क्यों पूछा कि जब माताजी लोग नहीं कर सकते तभी हम लोग भगवान को कुकिंग करके भगवान को खिलाना चाहिए, ठीक है? यस ब्रो। हर डीटीज के सेट के लिए, जैसे गौर निताई के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए कुछ मिनिमम से, मतलब बहुत लेवल अलग अलग रहता है, अलग अपने लेवल के हिसाब से करते हुए कुछ मिनिमम लेवल से आप वो बता सकते नहीं ब्रो जी, ये हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है, उसके ऊपर ऐसा कोई पंचरात्रि का विधि या किसी ने कुछ कहा नहीं, मैंने सारा स्टेक कर लिया, या इट इज डिपेंड अपॉन यू एंड योर फैमिली एंड योर काउंसलर्स, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि भाई हमारे घर में कोई नहीं रहेगा, वी कैन नॉट कीप लॉर्ड ऑन रेस्ट। मैं भगवान को सुला के हम लोग नहीं जा सकते। भगवान जैसे हमने लास्ट में लिखा, भगवान साक्षात भगवान थे, तो उनकी हम लोगों को केयर, एंड इज लाइक ए चाइल्ड, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग 4 दिन बोल देंगे भाई तू सो जा आराम से, हम लोग आके करें, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसकी केयर करना हमारा इंपॉर्टेंट है ना, इट्स द सेम। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गौरनीता रखना है, राधा कृष्ण का रखना है, या जगन्नाथ बलदेव। बट मेरा ऐसा कहना है कि आप गौरनीता रखेंगे तो दिन में कम से कम एक बार प्रॉपरली भूख लगाइए, और होता ही वो प्रॉपरली, बट हम लोग डिसाइड करेंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, और इट शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आप और माता जी के इसमें होना चाहिए। यात्रा इज एक्सेप्शनल, अभी गुरु महाराज का भी श्रवणम करना है तो वहां जाना पड़ेगा, दैट टाइम यू कैन टेक रेस्ट। बट ऐसे मैंने बहुत सारे भक्त अभी मैंने देखे नहीं है कि जो मंगल आते जा रहे हैं और फिर आते फ्रेश होके जा रहे हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे हमारे पुजारी से हमारे भक्त सेवा कर रहे हैं, ही इज नॉट गृहस्थ, ही इज स्टूडेंट ऑल्सो। वो यहाँ सेवा खत्म होता है रात के 10:45 को, रात का नाइट ड्रेसिंग खत्म करके यहाँ से वो हिंजोड़ी जाते हैं, 11, 11:30, पौने 12 बजे पहुंचते, अगेन वो बात लेते हैं, उसके बाद वापस दाल राइस का कुकिंग करते हैं 2-2 कुकर में, और वो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को ऑफर होने तो वही प्रसाद ग्रहण करके सो जाते हैं। थोड़ा यानी वो ऐसे, अभी इस केस में यात्रा में बहुत सारे लोग जाते हैं तभी रेस्ट लेते हैं, यूं तो मैंने बड़े बड़े डिओटिंग को भी देखा है, जाना माता जी सबको, वो रेस्ट कर रहे थे। बट वहां इंपॉर्टेंस क्या है, वहां गुरु महाराज का श्रवण करना है, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिया है उसको देखना है, अपने भगवान की लीला का देखना है, उसके लिए जाना है ना, आप कोई आपके सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हो। दैट इज द डिफरेंस, द पॉइंट। शोभा यात्रा ये निकालते क्यों निकालते हैं? कि सबको अच्छा लगता है, तो भगवान की भी वो हम ऐसे करें, तो हम भगवान को किसी डिवोटी के घर में रख रहे हैं, तो डिवोटी भी खुद से प्रेम से केयर ले लेंगे। हमारे पास भी आते हैं ऐसे डिवोटी, नो डीटीज, एंड वी आर हैप्पी इन सर्विंग द अदर डीटीज आल्सो, ऐसे कि मेरे ही डीटीज बहुत अच्छे हैं या मैं ही उनको करूँगा, तो होता है थोड़ा-सा भाव, बट सबके डीटीज को सेवा करने का वो भी चांस मिलता है। नहीं है, तो जैसे सेकंड केस में प्रभु जी ने बोला कि उनको रेस्ट करवाएँ, ड्राई फ्रूट के डब्बे रखे, जितना जो आपने ड्राई भोगा बनाया है, एंड दैट टू ऐसे नहीं कि ये सब्स्टिट्यूट है, इन द प्रेयरफुल मूड, कि हमको जाना भी है, बट एट द सेम टाइम प्लीज लॉर्ड बी मर्सीफुल, प्लीज एक्सेप्ट दिस भोगा एंड प्लीज फॉरगिव। काइंडली फॉरगिव अस, हमें कृपया करके माफ करिए। डीटी वर्शिप में सबसे इम्पोर्टेंट मूड भी है, कौन से मूड में हम क्या कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको कहूंगा कि आप जैसे टेंपल में डेटी वर्शिप करते हैं उसी स्टैंडर्ड में आप डेटी वर्शिप नहीं कर पाएंगे घर पे, एम आई राइट? नहीं कर पाएंगे। नो, आंसर इज नो, यू कैन बाथरूम डू। से बाहर कर ही नहीं सकते हैं, निकलेंगे।
आप किसी को कुछ कहना है और इसमें कर सकते हैं? टेम्पल में जैसा वर्शिप होता है वैसे आप घर पे कर पाएंगे? नहीं। ठीक, कंसिस्टेंटली नहीं, 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। आप खुद का एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं कि आप खुद का एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए, फिर उसके बाद आप उसको फाइनलाइज करिए, उसको चेंज मत करिए कि आपने फाइनलाइज किया कि भगवान को मैं 2 बार भोगा लगाऊंगा, आपने और माता जी ने किया, तो उसको किसी एटीट्यूड में वो करवा दीजिए। आप बोलेंगे मैं इट इज क्वेश्चन, वो घर में बैठा कौन देखने वाला, काउंसलर तो बहुत लंबा है, दिल्ली में बैठा हूँ, काउंसलर पुणे में है, कौन देखना, बट लॉर्ड इज लुकिंग यू ना। और टेम्पर स्टैंडर्ड मत करिए गुरुजी, टेम्पर स्टैंडर्ड इज सो स्ट्रांग, मत करिए। और हमें भी करने के लिए, हमें टेम्पल में रह के हमें करने के लिए बहुत दिक्कत होती है प्रभु। आपको मालूम ही नहीं, मतलब एनवीसीसी में मॉर्निंग ड्रेसिंग के लिए 8 पुजारी लगते हैं, 8 पुजारी लगते हैं, और नाइट के लिए 5 होते हैं, तो वो डिफिकल्ट टास्क है। टेम्पर स्टैंडर्ड इज वेरी डिफिकल्ट प्रभु। मैं मैनेज कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है वो क्या दुख होता है। सॉरी, वो दुख नहीं, वो भी आनंद है, बट क्या होता है कि दोनों मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है फिर। ठीक है, सॉरी। एनी अनदर क्वेश्चन ऑन दिस रिगार्ड? यस Right. So Prabhuji, there is no specific standard for a grihastha. Like it depends. यस प्रभु, बट प्रभुपाद ने स्पेसिफिक आपने देखा अभी पिछले वाले स्लाइड से कि प्रभुपाद इंफोसाइज कर रहे हैं कि हाउस होल्डर को उनको डीटी वर्शिप करना चाहिए। अभी इसमें हम लोगों ने और एक मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि जयदेव को ही कि जो टेंपल नियर बाय रहते हैं उनके लिए अर्चे विग्रह, टेंपल के अर्चे विग्रह है, तो टेंपल में आके बहुत सारे सेवाज अवेलेबल है, वहां वो अर्चे विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ फर्स्ट इनिशिएटेड वालों के लिए भी सेवा अवेलेबल है, सेकंड इनिशिएटेड वालों के लिए सेवा अवेलेबल है, बैकअप सेवा भी। तो उसका डिटेल में आपको पूरा बता रहा हूँ। जो टेंपल के आसपास रहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेवा हमारे पास अवेलेबल, यानी हर एक टेंपल में अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवीसीसी में अवेलेबल हो है, सब जगह होता है। आपको जगह वहां पूछना पड़ेगा उसके बारे में, बट ये सेवा अवेलेबल होती है। और प्रभु जी इसमें एक इंटेंशन क्या है कि हम क्यों ये नहीं एम्फेसिस कर रहे हैं कि कभी-कभी कैसे होता है ना, सिर्फ मेरे डीटीज का करना है, मेरा ये फेस्टिवल आ रहा है, फिर मेरी मुझे अभिषेक करना है, मुझे नया ड्रेस सिलना है, मुझे ज्वेलरी बनानी है, मुझे उनका डेकोरेशन करना है। ये इसमें अगर हम हमारे टेम्पल डीटीज के सर्विसेज को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वैसे नहीं चलेगा। तो हमको बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि थंब रूल नहीं है, कहीं पे भी थंब रूल नहीं मिलेगा आपको कि क्या करना है, बट हमारी प्रायोरिटी हमेशा टेंपल सर्विसेज को ही होगी, क्योंकि वो प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे घर के डीटीज को हम कर रहे हैं, हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड हम कहीं पे कम नहीं करना चाहते, बट हमको वो मैनेज करना पड़ेगा कि टेंपल के सर्विसेज भी है, फिर घर के सर्विसेज भी है। क्वेश्चन ब्रो? या यू एंड योर फैमिली, यू अकेले नहीं कर सकते क्योंकि माता जी को कुकिंग करना है, बराबर है ना माता जी? देखो, इसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अभी गौरनीताएं और इनिशियली जो होता है वो गौरनीताएं रख सकते हैं आप। गौरनीताएं जगन्नाथ जी लाइए, जगन्नाथ का राधा कृष्ण लाइए, उसके बाद शालिग्राम के बारे में सोच लीजिए। प्रभुपाद ने शालिग्राम भी वर्शिप कंपल्सरी बोला है, प्रभुपाद ने दिया जो स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है। बट आज के दुनिया में हम लोग कैसे, हम लोग फंसे हुए, जॉब में फंसे हुए हैं, रिलेटिव्स में फंसे हुए हैं, बाकी टेम्पल प्रोग्राम भी करना है, प्रीचिंग भी करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, फंड कलेक्शन भी करना है, सारा एक्टिविटी करना है हमें। तो ये सारा का जो एडजस्टमेंट है हमें करना है प्रॉपरली। एज ए हाउस होल्डर मुझे पता है कि कितना तकलीफ होता है हम लोगों को। एम आई राइट प्रभु जी? सबका राय सही है गलत है? एडजस्ट करना मुश्किल होता है ना। बॉस का फोन आता है रात के 10 बजे, भाई ये पीपीटी कल सुबह तक बना के भेज दो, फिर रात को और हम लोग बनाते बैठे। तो प्रभु जी मेरा ऐसा कहना है कि आप स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड के बारे में बता रहे तो मिनिमम 2 मील भगवान को दे दीजिए, मिनिमम। इट इज माई काइंड रिक्वेस्ट। उसके बाद आपको अभिषेक भी करना है, तो अभिषेक डेली नहीं हो पाएगा, आप एकादशी टू एकादशी करें। डेली ट्रेसिंग करना चाहते हैं तो डेली ट्रेसिंग करिए।
देखो एक बार हमारे जैसा होता है ना कि हम लोगों ने हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल कर दे उस हिसाब से। जैसे हम लोग देखो अभी हम लोग अब एवरीबॉडी इज डूइंग 16 राउंड, बट हम लोग जब 2 राउंड करते थे तो भी कितना तकलीफ होता था 2 राउंड करने के लिए भी, एम आई राइट? 2 के फिर 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 12 हो गए, फिर 12 फिर हम लोग 16 तक पहुंच गए, 16 में स्टेबलाइज हो गए। जैसा हम लोग को भी टीटी वर्शिप स्टैंडर्ड फिक्स करना है मेरे माइंड से, भाई मुझे क्या करना है, 2 बार भोग बनाना है, 2 बार भोग में क्या दाल राइस बनाना है। आज माता जी नॉट एबल टू डू एनी सर्विसेज, देन आई कैन एबल टू डू इट, मैं खुद कर पा रहा हूं, ठीक है, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो एकादशी भगवान को अभिषेक कर रही है, ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता, 20 से 25 मिनट लगते हैं, बट उसके लिए आपका साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ये मेरा कहना है। साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि मैं भगवान का ड्रेसिंग करते रही तो इसलिए मैंने मेरा जपा उस दिन का किया नहीं, मैंने रीडिंग किया नहीं, हमारा कोई लेक्चर सुना नहीं, वो कोई पॉइंट नहीं है। योर साधना शुड बी स्ट्रांग। इफ योर साधना इज स्ट्रांग देन deity worship is good, I am telling you frankly. You should chant your around 16 round, there is no compromise. श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, there is no compromise. आप कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन में आके डीटी वर्शिप करेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये मेरा कहना है। Am I right answer to you? Okay. या मैं आपको वृंदावन चंद्र का बोलता हूं, उसके बाद आप आपका खुद का डिसाइड कर लीजिए। वृंदावन चंद्र में हम लोग पहले गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं, इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम गुरु, उसके बाद परम गुरु का परमिशन लेते हैं, फिर राधा रानी का परमिशन लेते हैं, देन वी डू द 7 times टू राधा वृंदावन चंद्र, देन 7 times टू राधा रानी, देन शालिग्राम भगवान, देन स्मॉल deities of राधा वृंदावन चंद्र 7 times, and then we have in Vrindavan Chandra altar we have Gaur Nitai. So Gaur Nitai we are doing frame of Gaur Nitai, then Param Guru, and then Guru Maharaj. This is the process which we are following. And if you want deep we are doing 432 sorry, lotus feet 4-3 times, कमर पे 2 बार और फेस पे like that way. So you can decide. This is the temple standard. And in winter हम लोग मोर पंख नहीं यूज करते, भगवान को ठंडी लगेगी इसलिए, बाकी चावल होता है। पहला धूप होता है, दीप होता है, उसके बाद अर्घम होता है, उसके बाद वस्त्र होता है, उसके बाद फ्लावर होता है, और लास्ट में चावल होता है, और दोनों टाइम कंशल फूकते हैं हम लोग। दिस इज द स्टैंडर्ड। कुछ क्वेश्चन आपका? नहीं है? Yes, bro. Absolutely. He's a person ना, he's a personality. वो पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते भाई। It is depend upon you. इसलिए मैंने बोला specifically I am telling that it is a standard between you and your family members. Absolutely, absolutely. आपको देखो अभी आपका कैसे, दिस वर्क शेड्यूल फॉर द ड्यूटी इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। अभी जॉब अनसर्टेनिटी है, वर्किंग अभी 8 घंटा तो कोई जॉब करता नहीं, मिनिमम 10 घंटा काम करता है, उसके बाद आपका 4 घंटा आपका साधना है, आपका जपा है, आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ेगा, तो आप उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे? देखो कुकिंग करना है ना, मैं आपको तो कुकिंग में एग्जांपल देता हूँ कि कुकिंग बनाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट उसको हम लोगों ने बड़ा टास्क बना दिया। तो कुकर में दाल राइस करिए, आटा आप खुद गूंनिए, माता जी चपाती काटेंगे, आप सब्जी कट करिए, माता जी फ्राई करेंगे, क्या है उसमें डिफिकल्ट टास्क है? आटा गूंदना तो डिफिकल्ट टास्क है नहीं ना। मैं एस्कॉन में आके आटा गूंदना सिखाऊं? नहीं, मिनिमम 2 times। रोजी आपको सोचना है कि आप भगवान को कैसे समझते हैं, इज अ पर्सनैलिटी, और आप कैसा करते हैं, बट आप जो करेंगे वो रेगुलर करिए, ये मेरा कहना है। यस एब्सोल्युटली, ही हैज टू ऑफर। बट मान लीजिए आपने सोचा कि मैं कंपनी में ले लूंगा प्रसाद, हाँ
या मैंने टेम्पल गया, टेम्पल में किसी प्रोग्राम में प्रसाद अटेंड किया, बट आपने 2 टाइम किया, तो आप प्रोग्राम करने के बाद घर आके प्रसाद करेंगे, कुकिंग करेंगे? हाँ, दैट इज द पॉइंट। माई पॉइंट इज दैट आप शाम को प्रोग्राम को गए, राधेश्याम प्रभु के क्लास को गए और आपने आए रात को 11:30 बजे, तो 11:30 बजे नहा के आप वापस कुकिंग करोगे? हाँ, ना डिफिकल्ट है ना इसके लिए। जो आप देखो, द लॉर्ड इज अ पर्सन, वो आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यस प्रभु, यू कैन स्पीक लाउडली। या यू गो टू वृंदावन, आप वृंदावन चाहिए कितने बार भोग लगता है देख लीजिए। या आप ये तो जाए डॉकर चले जाए, डॉकर देखिए कैसा भोग लगाते हैं भगवान को। जगन्नाथपुरी चाहिए, जगन्नाथपुरी तो आप पागल हो जाएंगे। प्रभु जी, भोग ऑफरिंग इज अ लो, आप लो फीलिंग आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ माता बैठी है, माता लोग कोई कुकिंग करते समय पहले बिफोर कमिंग टू इस्कॉन आप टेस्ट करते थे कैसा बना है। अभी इस्कॉन वाले कुकिंग टेस्ट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? एम आई राइट? कुकिंग अभी टेस्ट नहीं करते, ऐसा चेक करते थे ना पहले, अभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाबा ये भगवान को ऑफर हो रहा है, लॉर्ड इज टेकन टू द ऑफ। दैट इज द पॉइंट। यस ब्रो। If you committed to Lord that I am giving you meal, then you have to give. Shortcut. I will not recommend. I am not authority for this. You can. I have to check with the authority and I'll tell to you. I am not authority for this. Sorry, I cannot answer this question. But as per my understanding, we should give. If you committed meal to Lord, then we have to give. Yes, bro. Yes. आप बोले जोर से कुछ बात। हाँ, राइट। हाँ, राइट। नहीं, हर एक का मूड डिपेंडेंट। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम लोग आपको कहीं नहीं करेंगे आपको साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एब्सोल्युटली। उसका मूड ही नहीं ना प्रभु। हाँ, उसका बिल्कुल। वो प्रीचर बनना चाहता तो उसको हम लोग कंपल्सरी नहीं, भाई तू प्रीचर मत बन, तू टीटी वर्शिप कर, ऐसा नहीं कह रहा है। if he's there, he wants to become a preacher, then his will is there. अभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद का आपका सेशन है विजय कॉपी केशव प्रभु का, ही इज अ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो हर एक का मूड अलग अलग है ना ब्रो। अभी आपने राधेश्याम प्रभु को कभी अल्टर में देखा नहीं होगा, मैंने नहीं देखा, आपने तो तो उनका मूड अलग है। राधेश्याम प्रभु इज डूइंग वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग, तो उनका मूड अलग है। हम लोग उनको बोल नहीं सकते प्रभु जी। मैंने कितने बार राधेश्याम प्रभु को रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी प्लीज कम फॉर आरती, ही इज सेइंग नो, आई डू नॉट टू शो अदर पर्सन, देन व्हेन आई विल डू, देन आई विल कम फॉर द सेवा, व्हेन आई विल डू द सेवा फॉर द लॉर्ड, मैं डीटी वर्शिप करूंगा तभी मैं आऊंगा आगे, नहीं तो नहीं आऊंगा। हिज थॉट प्रोसेस सो स्ट्रांग। आप देख सकते हैं, यानी राधेश्याम प्रभु जैसे इतने रिनॉन्ड पर्सनैलिटीज ऐसा करते हैं, तो हम लोग किस झाड़ की मूली। बराबर है।
यस ब्रो। यस, स्ट्रांगली आएगा फटाक से आपके पास। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा एक सजेशन अभी क्वेश्चन आंसर से मैं देख रहा हूं कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स से अच्छा स्ट्रांग फाउंडेशन कर लीजिए फिलोसॉफिकली पहले इस्कॉन में। आप थोड़ा सा असिस्ट करिए किसी भक्त को, उसके बाद आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होगा, डीटी आज होगा, उसके बाद आप डिटेल्स लेके आइए। आपका कंसल्टेशन विद योर काउंसलर्स एंड एवरीबॉडी सीनियर अथॉरिटीज। थोड़ा जल्दबाजी मत करिए डिटेल्स लाने के लिए आफ्टर आपका शादी होने के बाद। थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होने, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक टाइम होता है। आप जल्दबाजी कुछ करेंगे और उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, सॉरी किसी को ये किसी कहीं कोट नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और जितना आप प्रैक्टिकल में चलेंगे तो आप आपकी साधना स्ट्रांग करते रहेंगे और आप आगे जा पाएंगे। यस, किसी कुछ क्वेश्चन और इसे? यस, फोटो या व्हाट इज इंस्टॉल डिटेल्स? आपके मन से हिसाब से इंस्टॉल डिटेल्स का डेफिनेशन क्या है? देखो, हो घर के जो डिटेल्स होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है, उसमें एक सीनियर ड्यूटीज होते हैं टेंपल से, वो आते हैं और वर्शिप स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, या ही इज डू इनिशियल फर्स्ट अभिषेक, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉर्ड टू यू कम टू इन दिस आर्चे विगर। ठीक है, यानी हेड पुजारी होते हैं या जो सीनियर ड्यूटीज होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं। टेम्पल जैसा यज्ञ वगैरह कुछ नहीं होता है अपना, जो घर के डिटेल्स इंस्टॉल होते हैं उसमें। तो आपका सवाल क्या था? हाँ, डिफरेंस तो आपको डिसाइड करना है उसमें कि आप कैसा करना चाहते हैं। आप बोलेंगे नहीं यज्ञ करके भगवान को रेस्ट करके, नाइट को रेस्ट करके उन नेत्रोद्यम करना है आपको, ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत कम लोग, मैंने कोई फैमिली को देखा नहीं है ऐसा। गृहस्थास को मैंने टेम्पल का पूरा विधि देखा है मैंने, इंस्टॉलेशन विधि, बट सेम टाइप ऑफ विधि किसी ड्यूटी ने किया नहीं है अभी तक, ऐसा मुझे पता है। आप करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक ग्रेट, वी आर वेरी थैंकफुल, हम लोग आके सेवा करेंगे ब्रो। हाँ, एक खास सवाल था प्रोजेक्ट एक पीछे था जो परंपरा में आ रहा है। तो राधा कृष्ण का देखो, स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि गुजराती फैमिलीज में राधा कृष्ण का वर्शिप बहुत स्ट्रांगली होता है। तो हम लोग इस्कॉन में आने के बाद इस्कॉन स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं या आप सिख संप्रदाय जैसे करना चाहते हैं? नहीं, इसमें देखो दो पॉइंट है, एक आपका फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और आपके फैमिली में आपके फादर होंगे, आपके चाचा काका, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर होंगे, तो सबका ओपिनियन लेके आपको करना पड़ेगा। दे शुड नॉट फील दैट अब ये मेरा बच्चा इस्कॉन में जाके अलग कर रहा है भगवान का वर्शिप। अकेले तो आप कर सकते हैं ना उसमें, आपके फादर फोर फादर से जो डिटेल्स आ रहे हैं उसका तो वर्शिप अच्छे से करना चाहिए। नहीं, आपके पास अभी ऑलरेडी राधा कृष्ण है तो देन यू हैव टू वर्शिप राधा कृष्ण ना, उनको ऐसा सुला नहीं सकते आप सालों से करते आ रहे सेवा उनकी, तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इस केस में मैं कहूंगा कि आप एक बार डिसाइड करिए आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कि भाई आगे चल के हम लोग भगवान का सेवा कैसा करना चाहते हैं, कि वेदर विल अलाउ ओनली 1 मील या 2 मील, या एकादशी टू एकादशी ड्रेसिंग, या डेली अभिषेक, ये आपको डिसाइड करना है। यस ब्रो। व्हाट? ओके, सेम क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी ने, तो उस केस में हमने वही बताया कि किसी डिवोटी केयर में रख दीजिए, किसी डिवोटीज के पास रख दीजिए जो अच्छे से सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर सके। नहीं तो अगर आप उनको सुला रहे हो तो आप ड्राई फ्रूट्स रखें, एंड अगेन उनसे माफी मांग के कि दैट्स जस्ट एन एडजस्टमेंट, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 3 मील्स 2 मील्स हम आपको ड्राई फ्रूट्स या जो भी ड्राई भोग आपने बनाया वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में 10 दिन 15 दिन का जो भी है, बट अगेन द मूड ऑफ माफी मांग के। अभी सब बहुत सारे लोगों का आता डिटेल्स घर में लाना है, तो भाई देख लीजिए थोड़ा ये सेवा करना पड़ेगा। भगवान को ऑर्नामेंट बनाना, खत्म होने ऑर्नामेंट बनाने पड़ेंगे,
फ्लावर डेली आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगा सकते, फ्लावर बनाना पड़ेगा घरलैंड का। उसका भोगा प्रिपरेशन के लिए हेल्प करना पड़ेगा माता जी को। अकेले माता जी भी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वर्किंग है आजकल केस में, तो उनको भी जॉब पे जाना है, आपको भी जॉब पे जाना है, तो हमको उनको हेल्प करना पड़ेगा। मंदिर के फंड्स कलेक्शंस करने पड़ेंगे, क्लीनिंग का भोगा कलेक्ट होने के बाद, ऑफर होने के बाद उसके इंटरेस्ट को वॉच करने पड़ेंगे, आरती प्लेट बनाने की आरती करनी पड़ेगी, बैकअप सर्विसेज करने पड़ेंगे, और मेकिंग कॉटन लैम्प फॉर आरतीज एंड मिनिमम वर्क। ये सारे सर्विसेज जिसके घर पे डीटी लाने का सोच रहे भाई लोग, ये लोग देख लीजिए, हमारे भक्त लोग, ये सारे सेवा करने पड़ेंगे। राधानाथ महाराज ने डीटीज इंस्टॉलेशन के टाइम में 2019 में जीवे में कहा था, इट इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्णा appears in the form of deities to attract our heart, our service, award us a pure devotional service. Do not think, oh my God, the spiritual master has given a burden on me by giving these deities to me. This is not the right understanding. Worship them with humility, gratefulness. Surely they will listen your heart. Sorry, listen your intent. मैं कहता हूँ heart. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं। Yes, प्रभु। राधा रुंदान चंद्र ब्रेड नहीं खाते हैं। नहीं, मैं भी नहीं खाता उनके तरफ से, मगर कभी कभी खाता हूँ, बट लॉर्ड इज नॉट टेकिंग। मैंने देखा रुगो प्रभु के साथ में एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था, एंड एक टेम्पल में, उज्जैन टेम्पल में हम लोग गए थे, और उज्जैन टेम्पल वालों ने उनको उनके यहाँ बना हुआ ब्रेड खिलाने दिया था उनको, तो स्टिल ही हैड नॉट कुक दैट ब्रेड। ये मैं खुद ने देखा हुआ आपको बता रहा हूँ। ये रुगो स्वामी प्रभु हमारे हेड पुजारी, उनका स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। हरि बोल। गुरु जी, हम मतलब एनवीसीसी से लंबे रहते हैं, तो ये भी एनवीसीसी का ब्रेड ऑफर्ड रहता है, तो दे कैन यूज, बट जो हम लंबे रहते हैं तो उनको कैसे स्टैंडर्ड फॉलो करिए, फिर वो क्या स्टैंडर्ड रहता है? नहीं, आपका सवाल था कि ब्रेड ऑफर करना है कि नहीं करना है, पहला सवाल। बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन, राधा चंद्र भगवान ब्रेड नहीं खाते, फर्स्ट। सेकेंड, आपने कहा गोविंदा में बना हुआ ब्रेड है, वो भी ऑफर्ड है ऑलरेडी, वो आपको वापस सेकेंड ब्रेड आप ऑफर करना चाहते हो भगवान को, तो आप देख लीजिए। हम लंबे रहते तो प्रभु जी हम नहीं, मैंने आपको वही कहा कि जो भी चीज बनती है गोविंदा में वो भगवान को ऑफर्ड होती है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है, बाहर का ब्रेड नहीं कर सकते। नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं, तो घर पे ब्रेड, पाव, पिज्जा सब बनता है, सब बन सकता है, और वो बल्क क्वांटिटी में हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है, तो भी हम तवे में, कुकर में, उसके बहुत सारे ऑप्शंस है। तो एज फार एज पॉसिबल हम हमारा बनाया, क्योंकि देखो हमने या बच्चों को भी खाना होता है, पाव भाजी खाना है, पिज्जा खाना है, बट वो घर में बनाया हुआ बेस, घर में बनाया हुआ पाव अगर ऑफर करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पता नहीं वो किसने कैसे बनाया है। बहुत सारे वीडियोज हमने भी देखे, आपने भी देखे, है ना, पानी पूरी का आटा कैसे बनता है, पाव कैसे बनता है। सो बेटर है कि रिस्क नहीं ले एज फार एज पॉसिबल। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि वर्स्ट केस में नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बोला है मीट यू कैन ईट मीट बट प्रीच। यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन कहीं पे भी नहीं आ रही है, और जहाँ पे देखो ये ना सब अपने कॉन्शियसनेस पे है। अभी हमने हिज ग्रेस कृष्णान प्रभु को हमने, है ना, सर्विस करते हैं उनके साथ, तो बहुत सारी बात देखा कि ही नेवर ईट्स द फूड विच इज नॉट ऑफर्ड। और कॉन्शियसनेस देखिए ना, चैंटिंग, ही कैन चैंट 24 आवर्स अ डे, क्योंकि जीवेर लालसा यदि इति उत्तधाय कृष्ण शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जितना प्यूरिटी हम रखेंगे, अभी आपका हमारा लेवल क्या करेंगे ये डिसाइड करना है, वहां पे क्या लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ये डिस्कशन की बात है, बट अगर हम चाहे तो वो कर सकते हैं, और जितना हम हाईएस्ट फॉलो करेंगे ना स्टैंडर्ड, उतनी प्यूरिटी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्यूरिटी इज द फोर्स। हमने प्रभु जी को कितनी बार देखा है, लाइक अभी आज के दिन पे भी 64 राउंड्स चैंटिंग का प्रोग्राम हुआ निगड़ी में, वहां से हम प्रभु जी को साथ में लेके आए। तो प्रभु जी कहीं पे भी वहां पे हमारे अगर होस्ट को प्रसाद बनाने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब एज वाइज या टाइम वाइज नहीं है, तो हम एक जगह से लेके आते हैं, बट प्रभु जी कभी भी नहीं लेते, ऑफर्ड फूड है तो भी नहीं लेते, क्योंकि वो 16 राउंड्स कर रहे हैं क्या,
वो इनिशिएटेड डिवोटी क्या, पहले हमको ये सुपरफिशियल लगता है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जैगरेशन हो रहा है ऐसे लग रहा है, बट देखिए क्योंकि वो ये पूरा सर्कल है, उसी से हमारी चेतना बनती है। क्यों हमको बाहर का खाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम खाने भी जाए ना तो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑफर नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस अलग है। यही देखिए हमारी माँ ने ना इतना ओपिनियन नहीं बना, हमारे क्या घर में होटल जैसा मेन्यू नहीं बनता है, बट वो खा के एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन प्रभु जी भी घर में किसी ने बनाया है तो खाएंगे। अगर उनकी वाइफ, प्रभु जी चैंटिंग कर रहे हैं 16 राउंड्स नो इनिशिएटेड है, उनकी वाइफ नहीं करी तो बहुत प्रेम से टाल देंगे, खाएंगे नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे। ब्रह्मचारी देखिए, ब्रह्मचारी इतने हाई स्टैंडर्ड थे, वो दूसरों के प्लेट में भी नहीं लेते, पत्तल में लेंगे, हाथ में लेंगे। आई हैव सीन कृष्णान प्रभु ईटिंग इन हैंड। क्यों इतना स्टैंडर्ड फॉलो करें, वो तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इतना कंसिस्टेंटली चैंटिंग हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम हमारे स्टैंडर्ड में कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सो जितना हाई स्टैंडर्ड हम फॉलो कर पाए उतना बहुत अच्छे हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये 1 जन्म में जाना है, 2 जन्म में जाना है, 10 जन्म में जाना है, आखिर हमारे ऊपर है। बैक टू गॉड, हम सब केवल प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी बोलते कि ना इसी जन्म में जाने का प्रयास करें, तो हम रोज जाके बाहर खाएंगे ना, रोज कॉम्प्रोमाइज करेंगे, साधना एंड तक करेंगे, ये सारी इट्स अ सर्कल, इट्स अ प्रोसेस, ऑल द एस्पेक्ट्स वी हैव टू कंसिडर। तो है एक्सेप्शनल केसेस होंगे जैसे आप बोल रहे ट्रैवलिंग में, बट ट्रैवलिंग में भी मुझे अगर मैंने प्लान ट्रैवल्ड है ना, मेरा ट्रैवल प्लान किया हुआ है, ऐसे नहीं कि मैंने जाके टिकट निकाला और गए हैं, तो मैं पहले से कुछ ड्राई आइटम्स बना के, खाकरा जो भी है, बहुत ऑप्शंस है। प्रभु जी कुकिंग का तो बताते हैं ना, बहुत ऑप्शंस है, बस हमको करना चाहिए। इसलिए ना द क्वेश्चन प्रभु जी आज ना, कुकिंग आता है क्या, सही में सर्वाइवल कुकिंग तो आना ही चाहिए कम से कम। अगर हम सही में, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसे नहीं कि माता जी करेंगे हम नहीं करेंगे, नहीं है। हमको एक दूसरे को कोऑपरेट करके, हेल्प करके फिर साथ में बढ़ना है। ऐसे नहीं कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं करूंगा और माता जी कुकिंग करे, वो 56 लोग बनाएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता, नहीं चलेगा ऐसे। और अब ट्राई कर सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने मुझे फुल्का बनाना सिखाया। मुझे पहले कुकिंग आता था, बट इतना फुल्का वुल्का नहीं खाता है हम लोग महाराष्ट्र, चपाती खाते हैं, तो उन्होंने मुझे फुल्का बनाना सिखाया। उनको किसने सिखाया? अनिरुद्ध प्रभु ने सिखाया। क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, वो संडे पूरा उधर ही रहते थे, पूरा कुकिंग आता है प्रभु जी को। तो रसगुल्ला उन्होंने मुझे सिखाया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ऐसे नहीं कि कम नहीं लगता है मुझे। और हमने, प्रभु जी पहले कुकिंग करते थे, मैं उनको असिस्ट करती थी राधा कुंज बिहारी टेम्पल में, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो मेजोरिटी ऑफ द कुकिंग मैंने उनसे सीखा है। तो होता है, एंड लाइक हमारे बच्चों को भी सर्वाइवल कुकिंग आना चाहिए। अगर हम सही में डीटीज का प्लान कर रहे हैं ना, तो सर्वाइवल कुकिंग आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रभु। आप अभी ट्रैवलिंग की बात करता, मैं बहुत सालों पहले मैं कृष्णचंद्र प्रभु को मिला था। कृष्णचंद्र प्रभु को कोई यूएस में जाके उनको एक 3 महीने का प्रोग्राम करना था, अटेंड करना था, एंड वहाँ थोड़ा कुकिंग का इतना फैसिलिटी नहीं था। तो बड़े बड़े कंटेनर्स में ऐसे फ्राइड करके फुल्का या कुछ ऐसा आइटम लेके गए थे, वो सिर्फ जाके मिल्क में डालना है और खाना है ऐसा। तो ही कैरी एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड ब्रिंग ब्रॉट देयर। तो कृष्णचंद्र प्रभु ने ये किया था। आप बोलेंगे अब कृष्णचंद्र प्रभु की बात आप क्यों करते हैं, हमारी क्यों नहीं बात करते? अभी राधेश्याम प्रभु भी ट्रैवलिंग करते तो वो पूरा ट्रैवलिंग का प्रसाद हम प्रॉपर लेके जाते हैं, ऐसा नहीं, और उनका पूरा डाइट फिक्स है। आप पता नहीं होता तो बता दो, राधेश्याम प्रभु का पूरा डाइट फिक्स है। तो इतने बड़े पर्सनैलिटीज कर सकते हैं, तो हम लोग उतना हिसाब से प्रॉपरली प्लान करके जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो द लॉर्ड, जो डीटीज इतना हम लोग बात करें कि डीटीज वो हमारे लिए बर्डन नहीं होना चाहिए, इट इज अ लव। हमारे उनके प्रति प्रेम होगा तो उसकी तरफ से हम लोग उनकी केयर कर पाएंगे और प्रेम का नतीजा अच्छा होगा। ठीक है, ये इस्कॉन एनवीसीसी में जो भी हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं, जन्माष्टमी, देन गौर पूर्णिमा, एवरीथिंग हैज कवर्ड हियर। दिस इज द deities नाउ। चैतन्य, आप बोलेंगे प्रभु ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के समय क्या था? चैतन्य महाप्रभु ने हिमसेल्फ ही हैड गिवन द deities of himself by giving his own handmade deity to Srimati Vishnu Priya before taking a sannyas. This is Sri Gaurnita themselves are called their own deities, gifted them to their devotees Srila Gaur Das Pandit in Ambika Kalna, and these are the first deities, Gaurnita deities in the history of Gaudiya Vaishnava, and these still deities are there. अभी अंबिका कलना में अभी तक इनका वर्शिप होता है। These are deities of Udupi Krishna. Is this called by Krishna himself?
and give the Devaki Mata to worship the Dwarka in the Dwarka during the Dwapar Yuga. In Kali Yuga, he come to Udupi in the worship by the Madhava Vishnuas, and this worship still is going on. And Udupi Krishna ka jo deity standard hai, it is the highest deity standard. Nobody is allowed to go inside in the altar room in deities. उडुपी कृष्ण सबसे बढ़िया ये स्टैंडर्ड है. ये देखना है तो वो खिड़की से देखना पड़ता है हमें. उडुपी कृष्ण एंड राधा रमन deities आर फेमस फॉर स्टैंडर्ड. तो प्रभुपाद के समय भी राधा रमन में जाके बोलना था कि महाराज प्रभुपाद ने कि आप राधा रमन में जाके डीटी का स्टैंडर्ड सोच लिए, देखिए कैसे करते सेवा, और फिर हम लोग उसके साथ फॉलो करेंगे. राधा रमन में पुजारी भी आपको भोगा देगा तो यहीं से रख देगा, यू हैव टू टेक इट. वो खुद के हाथ से कभी हाथ टच भी नहीं करते राधा रमन में. और इतने से शालिग्राम वर्शिप है, बट बहुत ज्यादा आप देखेंगे कभी ड्रेसिंग उनका राधा रमन जी का कितना अच्छा बढ़िया करते लोग सेवा. एक नंबर सेवा है राधा रमन टेम्पल. This is the deities of Radha Rup Goswami, Radha Govind ji. It is a still worship. This is a famous photograph Radha Raj Bihari. जब टूट गया था उसके बाद का सेकेंड डे दर्शन है. जब प्रभुपाद कह रहे राधा राज बिहारी को, यू स्टे हियर, आई विल बिग बंगलो फॉर यू, बिग टेम्पल फॉर यू, राधा राज बिहारी. ये तभी ये था शेड में था, राज बिहारी शेड्स में थे. दिस इज द राधा वृंदावन चंद्र ओनली. इट इज फ्रॉम यूएस, न्यू वृंदावन, जिसमें राधानाथ स्वामी महाराज ने 11 साल भगवान की सेवा की थी, डे नाइट, फुल डे. पूरा महाराज 11 साल निकले नहीं थे वहीं से. दिस इज राधा वृंदावन चंद्र. एंड गोवर्धन इको विलेज में महाराज ने अभी रिप्लिका बनाए हैं वृंदावन धाम की. द राधा मदन टेम्पल इज देयर. राधा वन बिहारी, राधा वन बिहारी. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सीनियर डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, उनका भी खुद का सेट है डीटीज का, जो जहां भी जाता है. एंड इट इज नॉट ओनली वन. आप देखेंगे फोटोग्राफ में नरसिंह भगवान दिख रहा है, गौरनीता दिख रहे हैं, नरसिंह शिला है, शालिग्राम शिला है. ये पूरा ट्रैवलिंग करके हर जगह लेके जाता है और उनका ऑफरिंग प्रॉपरली होता है, वर्शिप प्रॉपरली होता है. तो इतने महान भक्त प्रभुपाद की जिन्होंने सेवा मोर देन 50 ईयर्स से किया है, वो सेवा कर रहे हैं डीटीज की. तो हम किस झाड़ की बोली भाई. ठीक है. सो वी आर जस्ट वाइंड अप. दिस आर द डीटी सर्विसेज अवेलेबल इन आवर एट योर टू होम. अल्टर क्लीनिंग, भोगा ऑफरिंग, वर्शिप ऑफ तुलसी महारानी, अच्छा, वेसल वॉशिंग, ऑफरिंग आरती, doing Shringar Seva, inviting devotees to guest in the darshan of deities, Asofa Prasadam, and doing the Abhishek for the deities and the festival days. Make your home as Vrindavan, as महाराज ने कहा है. अच्छा, इसमें सब लोग कहेंगे कि अभिषेक करना जरूरी है क्या? Anybody has that question? deities का? Yes? प्रभु अभी हमारे घर पे सभी मतलब 16 राउंडर्स हैं, तो पहले घर पे गणेश जी या फिर दूसरे कुल देवत वगैरह ऐसे रहते थे, तो उनके मतलब क्या करना चाहिए उनका प्रॉपरली विदाउट ऑफेंडिंग? देखो, इसमें अभी अब मैं जयदेव का एग्जांपल दूंगा. उनके घर में भी गणेश जी है अभी भी, वो अभी तक उनकी वर्शिप करते हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको छोड़ दिया. तो हम लोग उनके साथ उनकी भी सेवा कर सकते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन हमारा होना चाहिए कि हमारे जो जिस विग्रह को लेके आए उसकी सेवा करना चाहिए. उसके लिए आप सेवा कर सकते हैं. और उनका स्टैंडर्ड आपने कैसे फिक्स किया था पहले, और अभी क्या करना चाहते हैं, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आप लोग बोलेंगे ये हमेशा आप रोज स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. क्यों? यूं तो हमें भी टेम्पल ओपनिंग करना है, तो हमें डीटी मिनिस्टर को बोलना पड़ता है कि प्रभु हम लोग हमारे डीटीज इतने ला रहे हैं और हम इस डीटीज का इस टाइप की सेवा करेंगे. ये हमें भी डिक्लेयर करना पड़ता है. टेम्पल अथॉरिटी हैज टू डिक्लेयर डीटी मिनिस्ट्री कि हमें ये ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए. भागवत विधि और पंचरात्र विधि की दोनों साथ में जाएंगे तो हम लोग उसमें सक्सेस कर पाएंगे.
अच्छा, मेरे पास अभी 10 मिनट से मुझे चिट्ठी आई है, 10 मिनट में हमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, विल जस्ट वाइंड अप आवर थिंग। यस हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। एक्चुअली मेरे यहाँ पे लड्डू गोपाल है। मतलब मेरे मतलब मेरा होम टाउन महाराष्ट्र में दूसरे जगह पे है। तो ओके। मैं लेके आया था क्योंकि हमारे फैमिली में पहले से वो लड्डू गोपाल की वर्कशिप की जाती थी। तो मैं यहाँ पे अराउंड 1.5 साल से उनकी वर्कशिप करता हूँ। बट एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब वो स्टैंडर्ड सेम फॉलो होना चाहिए, वो डीटी में होता है या लड्डू गोपाल में कुछ ये देखो, प्रभुपाद ने या किसी अथॉरिटी ने आनंद अथॉरिटी ने लड्डू गोपाल का वर्शिप के लिए अथॉरिटी नहीं दिया है, ठीक। बट आपको करना है, अभी उसको तो हम लोग बंद नहीं कर सकते। तो आप एक बार फर्स्ट पहली बात आपके स्टैंडर्ड फिक्स करिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है आपके फैमिली मेंबर के साथ, फिर उसी हिसाब से उसका वर्शिप करिए। एक ट्रेडिशन भी होता है अपने महाराष्ट्र में कि जो शादी होता है तो वो लड्डू गोपाल गिफ्ट देते हैं, तो उसका भी वर्शिप करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा छोड़ नहीं सकते। बट इंस्टेड ऑफ लिविंग देम उसकी सेवा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो पूछिए ना। तो प्रभु जी फिर डीटी वर्शिप के लिए फिर मैं मतलब ये क्या मतलब कब करना चाहिए, फिर कब मतलब घर पे लाना चाहिए? उसके लिए डिसीजन मैंने आपको बोला कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर करेंगे, डीटी लाने के पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसा मैंने एक स्लाइड्स में लिखा था जिसमें ऑर्नामेंट मेकिंग ये सारे सेवा होना चाहिए, ज्वेलरी मेकिंग, आपको गार्लैंड बनाना है, भोगा बनाना है, आपके फैमिली मेंबर, आप अकेले हो तो सारी चीज करने में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स आएंगे और वो भी करने के लिए रेडी है। क्योंकि अभी क्या होगा, आज के दिन में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और टेम्पल के भी प्रोग्राम्स है, तो सारा का ये सम्मेलन प्रॉपरली होना चाहिए। इट इज नॉट दैट कोई फैशन होके हम लोगों ने डीटी लाया घर पे। मैं वर्ड यूज करता हूँ फैशन, हमने किसी को दिखाना नहीं कि भाई मैंने डीटी लाया, देखो राधा कृष्ण लाया, नहीं भाई, आप सेवा कैसे कर पाएंगे उसकी कमिटमेंट भगवान को आपको देना है और वो करना है आपको। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ डीटी, आप टेम्पल के आसपास रहते हो तो आप टेम्पल में सेवा करिए, आप अभी दूर रहते हैं तो आप पहले फ्रेम रखिए, फ्रेम के बाद आप सेवा करते रह जाइए, और आफ्टर समडे आपके और आपके फैमिली मेंबर को दोनों को कॉन्फिडेंस आ गया भाई हम लोग अभी प्रॉपरली डीटी वर्शिप कर सकते हैं, तो यू कैन टेक द डीटी एट योर होम बाय कंसल्टिंग योर काउंसलर। Am I right a question? मैंने आंसर प्रॉपरली दिया आपको? थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। और भोग के क्या मतलब, भोगा के दीप ऑफर क्या करते, क्या क्या मंत्र होते हैं, ऑफर के मंत्र होते हैं सबके अलग अलग? ठीक है, मैं एक ग्रुप में भेज देता हूँ प्रोसीजर एग्जैक्टली भोग ऑफरिंग का, तो आप बता दीजिए ईमेल आईडी, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ डिटेल, कौन सा मंत्र 1 2 3 4 5 है, जो टेम्पल स्टैंडर्ड का मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें से आप डिसाइड कर लीजिए। इज इट राइट? ओके। ऐसा कोई रेकमेंडेशन है क्या कि मतलब अगर राधा कृष्ण को वर्शिप कर रहे हैं तो उनके सामने जनरली तुलसी को वर्शिप करना चाहिए? नहीं, तुलसी वर्शिप होना ही चाहिए। राधा कृष्ण के सामने नहीं होना हाँ, होना चाहिए। यस, इट इज अ स्टैंडर्ड। दोनों साइड में है ना, तीनों 3 तुलसी मारने भाई। हाँ देखो, पहली बात है हर आरती में तुलसी रानी को आरती ऑफर होता है, पहले फर्स्ट पॉइंट दिस क्लियर। सेकंड, आरती तुलसी महारानी इन द अल्टर। थर्ड पॉइंट, उनको कोई भोगा ऑफरिंग होता नहीं है, जो व्हेन यू आर ऑफरिंग लॉर्ड, लॉर्ड गिव्स टू एवरीथिंग। मतलब ऐसा जनरली कभी-कभी बोला जाता है कि तुलसी आरती जो है वो जनरली डीटी के सामने नहीं की जाती। ले आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्वेश्चन इसलिए होगा कि वॉइस में जैसे कैसे होता है कि जो हमारा ऑल्टर होता है वो हम क्लोज करते हैं इसी वर्शिप के टाइम पे, तो वो करना चाहिए। हाँ बराबर है। वो ऑल्टर खुला रख के कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अल्टर बंद करके करना पड़ेगा, इसलिए अपना भी आफ्टर अल्टर क्लोज नरसिंह आरती का था, हमारा तुलसी महारानी का था, तो अल्टर आप मान लीजिए इसमें आपको भगवान को क्लीनिंग वगैरह करना पड़ेगा ना। आई चेक इट एंड कंफर्म, मेरे को इसके बारे में डिटेल पता नहीं, आई हैव टू चेक इट, मेरे को आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस। तो जी जितने भोग ऑफर करते हैं उसमें कितने आइटम्स होने चाहिए, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड है? अगेन इट इज कम टू यू प्रपोज, आप आपके माइंडसेट से, अभी हम लोग कहेंगे भाई दाल राइस है, सब्जी है,
चपाती है या पराठा है, ये बेसिक 4 चीजें तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक स्वीट होना चाहिए, या अभी वृंदावन चंद्र में 14 आइटम होते हैं राजभोग में, रात्रि भोग में 6 आइटम होते हैं, 2 सब्जी होती है, तो 2 स्वीट होते हैं। तो आपका भी कैपेसिटी देखना पड़ेगा ना, और आपका फैमिली मेंबर का, दोनों का कैपेसिटी देखना पड़ेगा। मंगल भोग में 4। मंगल भोग में 4 होते हैं स्वीट, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप जो भी कुछ स्टैंडर्ड रखना चाहेंगे डीटी लाने के बाद, वो डीटी की वर्शिप को हमेशा रखिए, ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं किया, ये मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं। यस प्रभु। Guruji, Hare Krishna. Guruji, I had asked about like DT worship which has been happening from generations in a Madhva tradition, you might consider, and DTs of Ram, Hayagriva, Krishna, and then Lakshmi Narayan. So Vishnu forms basically. In such a case, what would you suggest? And yes, elaborate DT worship parents have been, father has been performing. तो देखिए, पेरेंट्स आर डूइंग, उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। हमारा इंटेंशन क्या है? व्हाट इज आवर इंटेंशन? व्हाई वी आर ब्रिंगिंग डीटीज एट होम? हम लोग क्यों ला रहे डीटी घर पे? सेवा करने। अभी आपके पास ऑलरेडी विष्णु तत्व की डीटीज अवेलेबल है, जिनके आप पुराने सालों से सेवा करते आ रहे हैं, तो उनको तो इग्नोर नहीं करना है आपको, बराबर है? Either you have two options. One, that you can give that deities to any other your family member who's are not a devotee, or you can worship them. But उसका स्टैंडर्ड आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करना है आगे चल के। It is currently the deities are being worshipped. I was asking, so since we are connected to the Gaudiya Sampradaya, yeah, what should be my take? Is it that I, for now, go to temple and take some services there, or bring deities, have a separate worship at that's home? it. Instead of taking a deities, you can go to temple. It is my suggestion. And what are the deities are coming from your father, forefathers? You can give to your other brother, who's not a devotee. He can worship that. No, they're continuing. Yeah. Temple program is more important, project. Temple programs, temple sadhana, I will request that do not compromise on this. And fortunately, ISKCON, NVCC, Radheshyam Prabhu has done so much wonderful. He had given so much chance to us to do all the services. आप जाके बाकी टेम्पल में जाएंगे तो डीटी 4 रहेंगे और डीओटी 2 रहेंगे। आप यूएस जाएंगे तो आपको 4 डीटी दिखेंगे और वहां 2 डीओटी दिखेंगे। तो वी आर वेरी फ्लरिश। तो इस केस में उसका फायदा लेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। Yes, any other question? I'll thank you very much for all the coordinating team. जी बहुत बहुत धन्यवाद। Sorry, I'm not able to serve you properly. Thank you very much. हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल। So we would like to thank Prabhuji and Mataji for patiently telling us about so much about DT worship and answering our lots and lots of questions. We'll thank by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.